Assalamu alaikum students. Good morning to all of you. I hope you all are fine and studying at home. This is our media session from Sarsaya Children's Academy and Miss Misbah. I am going to teach you literature and language classes both. Let's begin our class. As you all know that our today's lecture is of English literature, so you must have your The Wizard of Oz book in front of you and your English literature copy as well. As you all know that in lecture number 1 हम chapter The Lion को already half read कर चुके हैं. So today in lecture number 3 we are going to complete the remaining part of The Lion. Let's start reading an explanation. Open page number 18 of your The Wizard of Oz book. The Tree Bridge. The travelers came to another ditch. This one was too wide for the lion to jump across. They sat down to think what they could do. Look at that tree standing close to the ditch, said the Scarecrow. If the Tin Woodman can chop it down, the top will reach the other side. We can use the tree as a bridge. We can walk over quite easily. The woodman started work at once. Soon the big tree fell across the ditch. Its top branches just reached the other side. Travelers. Travelers means मुसाफिर यानी ऐसे लोग जो किसी सफ़र में हो, हम उन्हें ट्रैवलर कहते हैं. वो ट्रैवलर्स चलते चलते एक और डिच की तरफ आते हैं और ये डिच पहली वाली डिच से ज़्यादा चौड़ी होती है कि लायन इसे जंप करके क्रॉस नहीं कर सकता. अब वो सब वहीं बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए, किस तरह यहाँ से दूसरी तरफ जाया जाए. देन स्केरक्रो कहता है कि उस ट्री को देखो जो डिच के करीब खड़ी होती है. वो उन्हें आइडिया देता है कि अगर टिन वुडमैन उस ट्री को चॉप करके गिरा दे तो उसका जो टॉप यानी जो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो जाएगा डिच के दूसरे साइड, और इस तरह हम थ्रू द ट्री, उस ट्री के थ्रू हम इसको क्रॉस कर सकते हैं आसानी से. और इस स्केरक्रो की ये बात सुनकर टिन वुडमैन उस ट्री को चॉप करने लगता है और बहुत ही जल्दी वो ट्री डिच के दूसरे साइड पर गिर जाती है. उसकी टॉप ब्रांचेस, जो उसकी ऊपर की जो ब्रांचेस होती हैं, वो पहुंचती हैं दूसरी डिच के साइड. नाउ ओपन पेज नंबर 19. They were starting to cross this strange bridge when they heard a noise. They turned round to look. They saw two terrible beasts running towards them. Kalidas, said the cowardly lion. He looked very frightened. Quick, cried the Scarecrow, let us cross over. Dorothy went first across the tree bridge, holding Toto in her arms. The Tin Woodman followed. The Scarecrow came next. The lion was afraid, but he stayed where he was. He turned and roared at the Kalidas. His roar was so loud and terrible that Dorothy screamed, and the Scarecrow fell over. Even the Kalidas stopped. They looked at the cowardly lion in surprise, but only for a minute. After that, they rushed forward again. Then the lion crossed over the tree bridge as fast as he could go. The Kalidas began to follow. वो उस ट्री ब्रिज को क्रॉस ही कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें कोई बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और जब वो सब पीछे मुड़ के देखते हैं, व्हाट दे सॉ वर टू टेरिबल बीस्ट. उन्हें वहाँ दो खौफनाक जानवर नज़र आते हैं जो उनकी तरफ आ रहे होते हैं. लाइन बोलता है कालिदास, और वो बहुत डरा हुआ लग रहा होता है. फ्राइटेड मीन्स डरा हुआ. देन स्केरक्रो सेड क्विक, जल्दी करो, हमें उधर जाना होगा. सबसे पहले डॉर्थी वेंट अक्रॉस अ ट्री ब्रिज. डॉर्थी उस ट्री ब्रिज से होती हुई वहाँ जाती है टोटो को अपने आर्म्स में लेके. देन टिन वुडमैन उसके पीछे जाता है, एंड देन स्केरक्रो. लायन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, बट स्टिल
He stayed where he was. वो वहीं रहता है जहाँ वो खड़ा होता है. Then he turned towards a कालिदास and roared. और वो कालिदास के देख के बहुत तेज़ धारता है. Roar means धारना, बहुत तेज़ साउंड निकालना. उसकी रॉर इतनी ख़तरनाक होती है कि डॉर्थी भी डर के मारे चिल्ला उठती है. इवन उसकी आवाज़ से स्केयरक्रो भी एक तरफ गिर जाता है एंड कालिदास भी रुक जाते हैं. वो बहुत हैरत से लाइन को देख रहे होते हैं, लेकिन ओनली फॉर अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए. आफ्टर दैट वो आगे बढ़ते हैं लाइन की तरफ. और ये देखकर लाइन जल्दी से उस ट्री ब्रिज को क्रॉस करता है. जितना जल्दी वो भाग सकता है वो उतना ही जल्दी भागता है और कालिदास उसे फॉलो करते हैं, यानी उनके पीछे आ रहे होते हैं. Frightened. Be quick, said the scarecrow. As the lion came across, then the scarecrow asked the woodman to chop away the branches that rested on their side of the ditch. The two Kalidas came running along the tree bridge. They got closer and closer. The Tin Woodman chopped harder and harder. Be quick. Scarecrow कहता है कि जल्दी करो. और जैसे ही लाइन अपने फ्रेंड्स तक पहुंचता है, स्केयरक्रो वुडमैन से कहता है कि ट्री की इन ब्रांचेस को जो उनकी साइड पे होती हैं उसे चॉप कर दे. देन टिन वुडमैन अपनी एक्स निकालता है और उसे कट करना शुरू करता है. वो कालिदास उस ट्री ब्रिज तक पहुंच चुके होते हैं और वो उनके करीब आते जा रहे होते हैं एंड टिन वुडमैन ट्री की ब्रांचेस को चॉप करने में लग जाता है. नाउ टर्न टू पेज नंबर 20. Just in time, the tree fell down into the great deep ditch. The terrible beast fell with it. They were both killed on the sharp rocks at the bottom. Those beasts frightened me so much that my heart is beating very fast, said the cowardly lion. I wish I could feel my heart beating, said the Tin Woodman sadly. The travellers walked on through the forest. After a while, they came to a river. The forest ended there. On the other side of the water, they could see the yellow brick road. The country it went through was bright and sunny. It looked very beautiful. How shall we cross the river? Asked Dorothy. That is easily done, replied the Scarecrow. The Tin Woodman must chop down a tree and make us a raft. Then we can get across. What happened next was when कालिदास were on the tree bridge, Tin Woodman उस ट्री को चॉप डाउन कर देता है एंड देन ट्री के साथ साथ कालिदास भी उस डीप डिच में शार्प रॉक्स के ऊपर गिर के मर जाते हैं. लाइन कहता है कि इन टेरिबल बीस्ट ने मुझे बहुत बुरी तरह डरा दिया था कि अब मेरा हार्ट बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा है. उसकी ये बात सुनकर टिन वुडमैन थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है कि काश मैं भी हार्ट बीट फील कर सकता. वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं एंड आफ्टर अ वाइल वो एक रिवर पे पहुंच जाते हैं. वहाँ फॉरेस्ट एंड हो चुका होता है एंड रिवर के दूसरे साइड उन्हें येलो ब्रिक रोड नज़र आता है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और ब्राइट होता है. देन डॉर्थी आस्क्ड कि हम रिवर के दूसरे साइड कैसे पहुँचेंगे. स्केयरक्रो रिप्लाइड कि तो बहुत आसानी से हो जाएगा. टिन वुडमैन को कुछ ट्रीज़ को चॉप डाउन करना होगा, यानी उन्हें काटना होगा और हम उससे राफ्ट बना सकते हैं. उसके बाद हम दूसरी तरफ जा सकते हैं. वॉट इज़ राफ्ट? इट इज़ अ फ्लैट फ्लोट. लॉग से या प्लैंक से बना हुआ, लॉग्स मीन दरख्त की लकड़ियों को काट के उनसे एक फ्लैट फ्लोट बनाना, एक ऐसी ट्रांसपोर्ट बनाना जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकती हो, पानी के ऊपर तैर सकती हो. तो उसके ऊपर बैठ के उस रिवर को क्रॉस कर सकते हैं. चैप्टर नंबर 4 ends here. Now it's time for the written work of this chapter. In the previous lecture, I gave you to make title page of this chapter. इस चैप्टर का टाइटल पेज आपको दिया गया था प्रीवियस लेक्चर में. So I hope कि आप सब ने वो बना लिया होगा. Okay students, so after the title page you will prepare page for difficult words. सबसे पहले आप डेट लिखेंगे लेफ़्ट कॉर्नर पे
एंड देन इन द मिडिल आप चैप्टर 4 मेंशन करेंगे एंड देन ऑन द राइट कॉर्नर यू विल मेंशन क्लास वर्क. फर्स्ट लाइन पे आप द लाइन यानी चैप्टर का नेम मेंशन करेंगे एंड देन यू विल राइट द हेडिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. एज यू कैन सी कि ये शब्द मैंने ब्लू से लिखे हैं, आप भी अपनी कॉपी पर उसे ब्लू से ही लिखेंगे. फर्स्ट वर्ड इज़ करेज यानी हिम्मत. नंबर 2 डिच, दैट मीन्स खाई. नंबर 3 वाइड, वाइड मीन्स चौड़ाई. नंबर 5 मॉन्स्टर, मॉन्स्टर एक इमेजिनरी क्रिएचर जिसके बॉडी में ह्यूमन एनिमल दोनों के पार्ट्स होते हैं. नंबर 6 कालिदास, ये हमारी स्टोरी के करेक्टर का नेम था. नंबर 7 बीस्ट, बीस्ट मीन्स खौफनाक जानवर. नंबर 8 क्रिएचर, क्रिएचर मीन्स मखलूक. नंबर 9 ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल. एंड नंबर 10 राफ्ट, राफ्ट मीन्स लकड़ी से बनी हुई ऐसी ट्रांसपोर्ट जो वाटर पे फ्लोट कर सकती है, तैर सकती है. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर डिफ़िकल्ट वर्ड्स यू विल प्रिपेयर पेज फॉर वर्ड मीनिंग. डेट एंड क्लास वर्क आप दोबारा मेंशन करेंगे अपने पेज पर एंड देन वर्ड मीनिंग के 2 कॉलम बनाएंगे. वर्ड का कॉलम आप मार्जिन लाइन से 3 फिंगर गैप देकर बनाएंगे. गॉट इट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज़ courage. That means able to face and deal with danger. किसी भी मुश्किल का सामना करने की जो हिम्मत होती है हम उसे करेज कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ डिच. डिच मीन्स अ लॉन्ग नैरो होल इन द अर्थ. ज़मीन में बहुत बड़ा होल होना या गैप आ जाना उसे हम डिच कहते हैं. थर्ड वर्ड इज़ एज. एज मीन्स द बॉर्डर ऑफ अ सरफेस. दैट मीन्स किनारा. फोर्थ वर्ड इज़ monster, an imaginary creature having parts of human and animal. फ़र्ज़ की हुई यानी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी मखलूक जिसके ह्यूमन एंड एनिमल दोनों के बॉडी पार्ट्स हों. फिफ्थ वर्ड इज़ बीस्ट. बीस्ट मीन्स अ क्रूअल क्रिएचर, एक बहुत बुरी मखलूक. लास्ट वर्ड इज़ राफ्ट. राफ्ट मीन्स अ फ्लैट फ्लोट दैट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट. फ्लैट मीन्स बिल्कुल सीधी एंड फ्लोट मीन्स जो तैर सकती है. सो ऐसी फ्लैट फ्लोट जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो सकती है हम उसे राफ्ट कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो मेक श्योर कि आप अपना काम बहुत साफ़ और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में करें एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क यू हैव टू मेंटेन इंडेक्स इन योर इंग्लिश लिटरेचर कॉपी. Now let's move forward and talk about your home task. Your home task is to read this chapter. आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे and then complete the class work given in this video. इस वीडियो में जो मैंने आपको क्लास वर्क करवाया है डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड्स मीनिंग, आप उसे अपनी इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी में कंप्लीट करेंगे. Students, make sure you have completed all the work before the next lecture of English literature. See you in the next class. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon to never miss an update. Stay safe. Allah Hafiz to all of you.